Yes, please. Good morning, sir. Please बैठिए. Rishika Suman, and your medium is English. Okay, please tell me about your educational qualifications. I have completed my 12th from commerce background. Then I pursued my career in LLB from Sainath University, Ranchi, In which year? 2018 to 2021. 2080 to 2021. ठीक है, okay. And your favorite subject is contract and Indian Penal Code. Yes, sir. Okay, what is the essential ingredients of theft? Theft. Theft is whoever dishonestly takes any movable property without the consent and out of the possession, and in order of such taking moves that property. Okay, and when thefts become robbery? When there is a instant fear of death, wrongful restraint, and hurt. Okay. Where the contract is defined? In section 2H. 2H. What says section 2H? 2H, according to section 2H, a contract and any agreement which is enforceable by law is contract. Okay, thank you. Please, sir, पूछिए. What is substituted performance of contract? Substituted performance of contract is given in section 20 of Specific Relief Act, which says that whenever any person breaks his promise and that person who is suffering from that promise can perform that performance from the third person or his agency, he has to give notice to that person. After that notice, he is able to compensation from that person. But after getting that substituted performance, he is not entitled to perform by that specific performance of that contract. Okay. When perpetual injunction may be granted? Perpetual injunction is basically a permanent injunction. It is granted on the merits of the case for preventing the breach of obligation. Okay. Have you heard the maxim volenti not fit injuria? Yes, sir. Voluntary non-fit injuria means taking risk, voluntarily taking risk. It has reference in IPC section 87, which says that any person who is above 18 years age can, if give consent to suffer hurt or any harm, then that person who is causing that hurt without any ill will intention, then Okay. एक एफआईआर की हम बात करते हैं तो सीआरपीसी में किस सेक्शन में आपको देखने को मिलता है? FIR is not defined in CRPC, but it has its reference in section 154. ओके. तो एक एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंस है? FIR ये हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है और NCR जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल बोथ ऑफेंसेस के लिए होता है. ओके. यदि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है तो क्या इसमें एफआईआर लॉस की जा सकती है? नो सर. ठीक है सर. और ये बताइए कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन से आप क्या समझती हैं? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, इफ किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के थ्रू, तो दैट पर्सन अग्रीव पर्सन में फाइल एन अपील, ताकि उसका जो सेंटेंस है उसको लेसर किया जा सके, या फिर हाँ लेसर सेंटेंस के लिए या एनल कराने के लिए, या फिर कुछ भी जो उसका है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपील फाइल. पहले तो हाई कोर्ट में ही जाएंगे. डिफॉल्ट बिल क्या होता है? Default bill. It has its reference in section 167 of CRPC. When investigation is not completed within 60 days in case of offence punishable with 10 years or more, that is life imprisonment and death, or in other cases sorry sir,
in case of death or punishable with life imprisonment and 10 years or more, then in that case 90 days or 60 days any other offense में, और उस टाइम तक अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और वो पर्सन अंडर ट्रायल किसी प्रिजन में है तो वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है। तो क्या उसको बेल मिलेगा कि आर यू श्योर अबाउट दैट? हाँ, बिल मिलेगा, वो उसका एंटाइटलमेंट है, वो उसे मिल जाएगा अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है तो। ओके, वाइड मैरिज क्या होती है? Void marriage is given under section 11 of Hindu Marriage Act. Any marriage which is in contravention of section 5 of Hindu Marriage Act, that is any person has contracted marriage having living a spouse at the time of marriage, and any person marrying within Sapinda relation and prohibited degree, then it is a void marriage. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी सब क्या समझती हैं? सर ये मुस्लिम लॉ के रेफरेंस मतलब दोनों लॉ के रेफरेंस में बताना है। मुस्लिम लॉ के रेफरेंस में बताइए। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जब भी किसी की शादी अगर माइनर एज में हो जाती है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो आफ्टर अटेनिंग, इन केस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो वुमेन होती है उसके पास अगर वो 15 ईयर्स प्लस हो गई है बट 18 ईयर्स अटेन करने से पहले उसके पास ऑप्शन है कि वो डिवोर्स के लिए वो फाइल कर सकती है। सेम इन मुस्लिम लॉ मेल और फीमेल दोनों के पास राइट है। मेल के पास तभी राइट होता है जब तक वो मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हो, लेकिन फीमेल के पास भी वो राइट है कि वो मैरिज को डिसॉल्व करा सके। स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 354D ऑफ IPC। इट इज़ बेसिकली किसी को मॉनिटर करना इंटरनेट यूजर्स को और उस पर नज़र रखना, वो ये स्टॉकिंग में आता है। आपके हिसाब से इस वक्त आपको स्टॉक किया जा रहा है? नहीं, इलीगली करना जो कि उसका राइट, मतलब कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी और वो कर रहा है तब वो स्टॉकिंग नहीं है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी उसने इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके फेसबुक पे वो अगर नज़र रखते हैं या फिर वो जो भी एक्टिविटीज़ करती है उस पर अगर नज़र रखा जा रहा है या फिर उसको अनॉय किया जा रहा है उस टाइप से करके उसे अफेक्ट हो रहा है तो वो स्टॉकिंग है। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, अडल्ट्री से रिलेटेड वो कौन सा लीडिंग केस लॉ है जिसके माध्यम से अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या था इसमें बताएंगे आप? अडल्ट्री ये 497 ऑफ IPC, इसमें ये था कि अगर कोई हस्बैंड है, वो ग्राउंड भी है लेकिन अभी भी वो डिवोर्स का ग्राउंड है, लेकिन अब वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो बेसिकली जेंडर बायस था। अगर किसी की वाइफ किसी मेल पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उस केस में जो जिसके साथ वो कर रही है उसे पनिश किया जाता था, बट वेमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो ये थोड़ा जेंडर बायस था इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। आप ये बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हैं? नालंदा। नालंदा प्राचीन समय में किस राज्य का पार्ट था? मगध। मगध की कैपिटल? पाटलिपुत्र। ओके। जज क्यों बनना चाहते हैं आप? सर, माय बैकग्राउंड हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू बी अ जज। मेरे पापा और मेरे भाई दोनों ही एक प्रोसिक्यूशन और एक एडवोकेट साइड से, तो हमेशा उन लोगों को देखा है दोनों के पर्सपेक्टिव से फाइट करते हुए, तो वो एक इंस्पायरिंग है। और प्लस जज प्रोफेशन है वो सिस्टमैटिक अफोर्ड करता है एक सिस्टमैटिक लाइफ सिस्टम, सिस्टमैटिक वे में, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो माई लाइफ वुड बी डिसिप्लिन हेयर। अगर आप दुर्भाग्य से जज नहीं बन पाए तो? Sir, I am confident that I will be selected, but if unfortunately if I will not get selected, I will appear for the next exam with full preparation and right strategy. वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी? DY चंद्रचूड़। पटना हाई कोर्ट के? K विनोद चंद्रन। आपने अपनी हॉबीज में लिखा है डॉडलिंग, क्या होता है ये? So doodling basically making any pattern or drawing anything when your attention is not there and you are bored. आपके रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट क्या हैं?
237. 237, वेरी गुड। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नाम सुना ही होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन? 269 है. 269 है तो आई थिंक जीएसटी के बारे में। Sorry. चलिए प्लीज़ सर। अच्छा, ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी के अलावा और कौन सा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? Sir, I have given attention to all the subjects like evidence and CRPC also. ओके 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 ओके। सो यू आर बेसिकली रीडिंग दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नोट yet not? Not, sir. Okay, so tell me please, what is the fact and issue? Fact and issue. Any fact, anything which is denied or asserted, which is asserted by any party or denied by any party, means disputed fact, और जो किसी भी फैक्ट का नेचर, उसके एग्जिस्टेंस, उसके राइट्स और लाइबिलिटी को शो करता है, उसे फैक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक को अक्यूज है किसी मर्डर का, तो ये फैक्ट एंड इशू होगा कि वेदर ए हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, या ये फैक्ट एंड इशू होगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। नालंदा से आई हैं, झारखंड से हैं? झारखंड से। ओके, तो आज ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने बजे है? 2:30 बजे। ओके, कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, 25 तारीख के बाद हम लोग आपको ये व्हाट्सअप भी कर देंगे। प्लीज़ इस पे बहुत आपको सीरियस होकर इस पे काम करना है। नॉलेज आपकी अच्छी है, थोड़े बॉडी लैंग्वेज में सब लोग जो हैं सहमत हुए हैं, आपको उस पर प्लीज़ काम करना है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके अंदर ना अभी बच्चा है, मतलब जैसे एक छोटी बच्ची होती है ना, वो एक्टिविटी है आपकी। आपने कोई भी आंसर करते हुए पैनलिस्ट को देखा ही नहीं, आप ऊपर देख रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो प्लीज़ बी कंट्रोल। और आपको क्या करना है कि जो पैनलिस्ट पूछ रहे हैं उनकी तरफ देखना है और साथ में सबको एक्सप्रेस करते हुए आंसर आपको करना है। यही बस आपकी मेजर जो है प्रॉब्लम हम लोगों ने नोटिस की है। इस पे अगर आप काम कर लेंगे तो फिर आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज अच्छी है। अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपसे नहीं आप बन पा रही है, लाइक बेयर एक्ट की लैंग्वेज, तो आप उस, क्योंकि हेजिटेशन जब होते हैं तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसमें आप कॉमन चीज़ें जो हैं बोल देंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए, आपके बोलने का जो वर्ड है उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। आप जल्दी जल्दी बोल रही हैं हर वर्ड में, उस पर थोड़ा सा काम करना। उसी वजह से अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक करके थिंक करके तब प्रोसेस करेंगे ना, तो अच्छा आंसर निकलेगा और आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे आंसर को। तो उस पर आपको काम करना है। बॉडी लैंग्वेज अभी भी आप ऊपर देख रही हैं, तो इस पर प्लीज़ आपको काम ही करना है। ओवर लाफिंग हुई है एक दो बार तो हंसना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार आपने हैंड इस तरह से स्टॉप करने के लिए हैंड उठाया है, तो हैंड मूवमेंट नहीं होना, मीन्स आपको नहीं पता होगा वो बॉडी कब आपकी एक्टिविटी करती है। तो ओवर लाफिंग नहीं करनी है। आपका जो हमें लगा, जैसे अभी सर मैं जी 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 प्लीज, अभी इंटरव्यू नहीं है आपका, तो ये हाथ वाथ हटाओ और नॉर्मली बैठ के बात करो, बिल्कुल जैसे नॉर्मली। हाँ अब तो सबसे हाँ, तो आपको बस बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सब लोगों को बताया कि आप घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी, और वो भी बैठ के आधा घंटा बैठ के प्रैक्टिस करिए। जब आपका ये हो जाएगा डेफिनेटली आपको जाएगा। आपने चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, यस, वो आपकी बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक थी। एक आप यहाँ से जब गए तो थैंक यू आपको जरूर बोलना था, ठीक है? बहुत धीरे से बोले, सॉरी, बहुत धीरे से बोले थे। तो नहीं, धीरे से वो थैंक यू बोलना है, वो मन मन में नहीं बोलना है। बाकी नॉलेज आपकी वेरी गुड है, इस पर आप काम कर लेंगे। आपने अपनी जो ये हॉबी लिखी है इस पर और थोड़ा सा काम कर लेना प्लीज़। नालंदा जो बिहार है, आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेना। एंड आपने आर्टिकल गलत बता दिया था कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, 269 जो मैंने पूछा था दिल्ली वाला, हाँ वो दिल्ली के प्रोविजन थोड़े से पढ़ लेना, ठीक है? बाकी आपका ठीक है, एवरीथिंग गुड है। एंड न्यू क्रिमिनल लॉ, सर ने बहुत बेसिक सी बात पूछी थी, तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन हम लोग रखेंगे, पैनलिस्ट रखेंगे, तो प्लीज़ उस पर काम कर लीजिएगा। अगर आप बेसिक बातों पे भी काम कर लेंगे, और सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। और आपके अंदर बच्चा है, आपको ये प्रिज्यूम करना है कि आई एम ए जज, फिर देखिए आपका कैसे इंटरव्यू होगा। चलिए, हाँ, ड्रेस अभी तो आप यहाँ पर आई हैं तो ड्रेस नॉट प्रॉपर, और दुपट्टा तो आपको कैरी करके आना चाहिए था अभी भी, सर ठीक है? वो साड़ी पहनने वाले हैं।
हाँ नहीं वेरी गुड, नहीं हम लोग यहाँ पे नोटिस तो करेंगे, हम आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आप वहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइएगा। और जैसे आपके बाल अभी भी कान से बाहर निकल रहे हैं ना कुछ ये, तो आप अपने हेयर को भी अच्छे से कैरी करेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये आपके अंदर मेच्योरिटी लगनी चाहिए, बस थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी है, वो बच्चापन जो होता है वो प्लीज़ उस पर कंट्रोल करना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर अभी तो माइंड में नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना, वरना व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आप अपने फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लीजिए, आप हाँ। सिलेक्शन ले लो। सर वो फेस एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आप आपके अपने आप को कैमरे फोन रखिए। 20 मिनट बैठ के आपको एक प्ले करना है, हाँ प्ले करना है, ये समझ लीजिए। हाँ प्ले करने में तो ड्रामा करना होता है ना, कुछ और दिखाना होता है, तो बस वो करना, आपको इधर उधर नहीं घूमना, आपको ध्यान रखना है, ये- अपनी आईज रिवॉल्व नहीं करनी है, ऐसे ऐसे सीधे बात करनी है, अगर देखना है तो ऐसे देखना है। वरना वो आपको फिर लाइटली लेंगे। आप यूं भी घुमा देती हैं आईज अपनी, हाँ 360 डिग्री पे हाँ हाँ ऐसे से ऊपर ले जाके बात करते करते। हाँ प्लीज़। सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हाँ बहुत नॉलेज बहुत अच्छी है। नॉलेज ठीक है, बस आपको बॉडी लैंग्वेज पे ही काम करना है। इसके लिए तरीका ये, फ़ोन रखिए सामने, रिकॉर्ड करिए, खुद से बात करिए, बी सिंसियर, मिरर के सामने बात करिए आराम से। जब अभी आपके पास टाइम है, 10-15 दिन मिलेंगे अभी इंटरव्यू में, तो आराम से तब तक आप अपने आप को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the Okay. best.